Radhya in Education. This is Neha Shah. Currently, we are running our chapter number 6 triangles of the class 10th mathematics curriculum. और हमने most of the section complete कर लिया है, which includes the introduction, the concept of basic proportionality theorem, the criteria for similarity, and the exercises and examples related to all these concepts. इस वीडियो में हम लास्ट पोर्शन कवर कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 6.3 दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी क्या होता है ट्रायंगल्स का और क्राइटेरिया क्या है, ये इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड कंटिन्यू फॉर दिस कंसेप्ट. ओके, लेट्स बिगिन विद रीडिंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. It is said that E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. E is a point on a side produced of parallelogram ABCD. Parallelogram मतलब both the pairs of opposite sides are parallel to each other and equal. और एक साइड को एनहेंस करते हुए अगर उसको प्रोड्यूस करते हैं इन्फाइनाइटली तो E उस प्रोड्यूस्ड लाइन पे एक पॉइंट है सच दैट EB जो है वो इंटरसेक्ट करता है CD को F पे. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ABE और ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल CFB वो सिमिलर है. ओके, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB वो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो CBE एंगल और एंगल AEB ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे बिकॉज AE इज पैरेलल टू BC. वी विल स्टार्ट विथ सेइंग कि इन triangle ABE and triangle CFB what we will say कि angle AEB is equal to angle CBF, alternate angles to which two sides parallel? AE parallel BC. Okay, because it is a parallelogram, right? Also, which two other angles are equal? We can say कि angle A is equal to angle C. Opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore, we say that angle EAB is equal to angle EAB is equal to angle FCB. Correspondence देखो, A के साथ C correspond कर रहा है, E के साथ B और B के साथ F. तो E के साथ क्या correspond कर रहा है? B. So we will say कि BCF, angle BCF. Why? Because they are opposite angles of a parallelogram. Parallelogram के opposite angles कैसे होते हैं? They are equal. Therefore, by which criteria? By AA criterion, we say that triangle ABE is similar to triangle CFB. Clear? Okay. Let's read the 9th one. The question is, in this figure ABC and AMP are right angles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and CA upon PA is equal to BC upon MP. काफ़ी ज़्यादा easy है. एक तो आपको ये दे दिया है कि right angles हैं, तो we will start with saying कि in triangle ABC and triangle AMP, angle ABC is equal to angle AMP. right angles already given है कि वो right angles हैं at B and M respectively, so they are right angles. Also, what is a common angle? A is a common angle in both. Also, angle BAC is equal to angle B के साथ M correspond कर रहा है, so MAP, correct? Because common angle. Therefore, again by AA criterion, triangle ABC is similar to triangle CAMP. Okay. अब AMP से similar है ABC, तो just check what you need the next proof. Okay.
तो ये हो गया आपका CA और ये हो गया PA। सो CA अपॉन PA, अगर आप फिगर नहीं भी देखते हो तो भी आपको रियलाइज होगा कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ से, ठीक है। CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। क्लियर? सो दैट इज योर प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? क्वेश्चन 10 थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 3 पार्ट्स हैं प्रूव करने के, बट ईजी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। इट इज़ गिवन दैट 2 ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, ऑलरेडी गिवन है कि ABC इज सिमिलर टू FEG सच दैट CD और GH जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। नाउ व्हाट आर एंगल बाइसेक्टर्स? दे आर द लाइन सेगमेंट्स दैट डिवाइड अ गिवन एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर CD एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो एंगल ACB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सच दैट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB। ओके, एंड सेम थिंग गोज हियर। अब हमें करना क्या है? देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू नीड टू प्रूव। CD अपॉन GH इज AC अपॉन FG, दैट इज वन थिंग। अब CD और GH, AC और FG कौन से 2 ट्राइंगल्स में आते हैं पहले वो देखना है। तो आई सी कि इट इज कमिंग इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, ACD and FGH, can I say कि एंगल A is equal to एंगल F because triangle ABC is similar to triangle FEG, ये जो दिया है, करेक्ट। एंड what else can I say? एंगल ACD is equal to एंगल FGH। अब ये हमने डिराइव कैसे किया? We derived it by saying because angle ACB is equal to angle FGE, FGE. Why? Because triangles are similar and उसका हाफ भी, हाफ ऑफ एंगल ACB will be equal to half of angle FGE. What is half of ACB? Half of ACB is ACD and half of FGE is FGH, करेक्ट। और ये हाफ हमने कैसे लिखा? बिकॉज CD एंड GH आर द बाइसेक्टर्स, करेक्ट। इसको आपको सेपरेटली एज ए स्टेप लिखना है तो भी चलेगा और ब्रैकेट में दिखाना है तो भी चलेगा, ओके। देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। इससे क्या मिलता है आपको? CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। सेकेंड क्या डिराइव करना है? देखो, ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल HGE, ओके। नाउ सिंपल है, DCB इज इक्वल टू HGE, एंगल्स में सेम लॉजिक अप्लाई होगा, और B और E इक्वल है, अगेन सेम लॉजिक बिकॉज दे आर सिमिलर। सो ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। दूसरा क्या है? DCA इज इक्वल टू HGF इज सिमिलर टू, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। यू डोंट हैव टू डू इट अगेन। DCA नेम इधर इधर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, HGF, ठीक है। तो आप पहले से भी नेम उसको ऐसे ही कर सकते हो एज गिवन इन द थर्ड वन, ओके। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। बहुत ज़्यादा ईजी है, करेक्ट। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 11. In the figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. E is a point on side CB produced of triangle ABC such that AB is equal to AC. Show that, or if it is given कि AD is perpendicular to AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. Easy है। See, अल्टीमेटली आपको प्रूव क्या करना है? ABD में तो ऑलरेडी आपको एक
एंगल तो इक्वल दिख ही रहा है, राइट एंगल ABD और ECF में एक राइट एंगल दिख रहा है, सिर्फ दूसरा एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि AB इज इक्वल टू AC, तो therefore you can say कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, ACB इक्वल टू एंगल ABC बोल सकते हो आप। ACB को हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज FCE, सिंपली सिर्फ नाम चेंज किया है, एंगल वही का वही रहता है। नाम क्यों चेंज किया है, बिकॉज आई नीड अ ट्राइंगल ECF, राइट। सो FCE इज इक्वल टू एंगल ABD, C की जगह D लिखा बिकॉज आई नीड दैट ट्राइंगल। अगेन यहाँ पे जो दिया है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ECF इज इक्वल टू ABD। ऑल्सो व्हाट डू वी हैव, ऑल्सो एंगल ECF में राइट एंगल कौन सा है, वी कैन से EFC, EFC इज इक्वल टू एंगल ADB, करेक्ट। एंड देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन triangle ABD is similar to triangle ECF. Easy? Understood? Okay. Let's understand the 12th one. 12th में क्या दिया है कि AB जो साइड है और PQ जो साइड है ट्राइंगल ABC और PQR के, वो प्रपोर्शन में है, BC और QR प्रपोर्शन में है, और उनके मीडियंस AD and PM. Now what is a median? Median is a line segment joining the vertex and its opposite side of a triangle which divides the triangle or the opposite side into equal parts is called a median. तो यहाँ पे क्या है, आपको given में क्या है कि वो proportional है, मतलब क्या हुआ कि AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. Okay, that this is what you are given. आपको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. नाउ AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR. BC upon QR. Can I write BC upon QR as half BC upon half QR? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल को, एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। बहुत कौन से ट्राइंगल्स को, ये जो छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको सिमिलर प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, हम ये दो एंगल्स को इक्वल ला सकते हैं। ये दो एंगल्स अगर इक्वल आ गए, वी ऑलरेडी हैव AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR and we have an included angle equal. Therefore by SAS we can prove कि triangle ABC is similar to triangle PQR. बट उससे पहले we need to prove कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और जो दिया है वो यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि आई विल प्रूव कि ABD इज सिमिलर टू PQM। AB और PQ का रेशियो सेम है, AD और PM का रेशियो सेम है, हमें सिर्फ थर्ड साइड चाहिए, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव BC अपॉन QR, उसको हाफ हाफ कर देंगे तो BD अपॉन QM आ जाएगा। सो आई कैन से कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब क्या मिल गया मुझे, इन ट्राइंगल ABD एंड PQM में तीन साइड्स के रेशियो आर इक्वल। देयरफॉर आई कैन से कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SSS क्राइटेरिया, करेक्ट। नाउ अगर ऐसा है ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM है, तो आई कैन से कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करेक्ट। ऑल्सो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल, मतलब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी हैव AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR. इट इज ऑलरेडी गिवन, करेक्ट, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q. सो आप देख सकते हो कि एक साइड दूसरी साइड बीच का एंगल, तो वो फुलफिल हो रहा है बाय SAS. So by SAS criterion, triangle ABC is similar to triangle PQR. Clear? Let's read question 13.
D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. BAC पूरा एंगल और यहाँ पे एंगल ADC. प्रूव क्या करना है हमें? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. अब स्क्वायर देख के डरना नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ रेशियोज. मतलब CA अपॉन CB इज इक्वल टू ये CA स्क्वायर है तो वो क्या हुआ एक्चुअली? इट इज CA इंटू CA विच इज इक्वल टू CB इंटू CD. दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव. तो वी विल से CA अपॉन CB शुड बी कम आउट इक्वल टू CD अपॉन CA. अब ये तो हम प्रूव कर सकते हैं, राइट? कैसे करेंगे? ट्राइंगल्स देखो कौन से लेंगे. यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल यूज हो रहा है? ACB, ट्राइंगल ACB. और यहाँ पे कौन सा हो रहा है? ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD. I can clearly see why these two triangles are similar. देखो which two triangles we should take? We should take in triangle ABC and triangle. अब A के साथ क्या correspond कर रहा है? D, correct? Because angle A is equal to angle D. तो अब ABC में angle BAC is equal to angle ADC, correct? और common angle ACB is equal to angle DCA, correct? That is how by AA criterion both these triangles are equal, similar. अगर similar है तो क्या हुआ? Triangle ABC is similar to triangle DAC, okay? तो क्या हुआ? See what we need is CA upon CA. तो CA upon CB. यहाँ पे CA upon CD आ रहा है. CA upon CD is equal to CB upon AC, correct? मतलब CB upon CA. That is what we get ultimately is CA square is equal to CB into CD, correct? Okay. Let's move on with question number 14. बहुत ज़्यादा tricky है, समझने में थोड़ा सा difficult भी है. दिखता है similar to question 12 but वो नहीं है. It is very different from question number 12. Let's read the question first and understand the figures. Sides AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. उसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि AB और BC प्रोपोर्शनल थे, जो हम यहाँ से हाफ करके BD ला सकते थे, छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते थे. बट यहाँ पे क्या दिया है? PQ इज प्रोपोर्शनल टू AB, PR इज प्रोपोर्शनल टू AC. बेस तो दिया ही नहीं है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा टू गेट द बेस इनटू द पिक्चर, राइट? और PM इज प्रोपोर्शनल टू AD दिया है. प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ABC इज सिमिलर टू PQR. ABC is similar to PQR. अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? You need either third side or included angle, something you need to prove equal. Okay. What we are doing in proof is, see this very carefully. We are extending the triangles. See, PM से equal एक लाइन लेनी है, extend करनी है PM को, और फिर ये join करने हैं. Ultimately what you are making is a parallelogram. Similarly you have to do here, AD से equal एक line segment बनाना है और join करना है. So वो आपके construction में लिखा जाएगा कि construct, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो. I have given the names E and L. Okay, आप नाम दे सकते हो कुछ भी. We will say कि construct line segment ME such that PME, okay, construction कैसे शुरू करेंगे? We can say by saying कि extend segments PM and AD to points, okay, such that PM is equal to LM and AD is equal to ED या DE, okay.
तो इससे क्या हुआ, ये जो बन रहा है आपका PQRL एंड ABEC, वो पैरेललोग्राम बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल बनाए हैं। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, सो वी विल से कि फॉर पैरेललोग्राम्स और फॉर क्वाड्रिलैटरल्स PQLR, M is the midpoint of both QR and PL, करेक्ट, बिकॉज हमने वो बनाया है और PM मीडियन है ऑफ ट्राइंगल PQR, और जो दूसरा हमने कंस्ट्रक्ट किया है उससे हमने ये दोनों को इक्वल बनाया है। तो यू कैन राइट दोज रीजंस इन द ब्रैकेट, करेक्ट। M is the midpoint of, therefore quadrilateral PQLR is a parallelogram. Similarly, quadrilateral ABEC is also a parallelogram. See, इससे क्या हो रहा है, AC is equal to BE आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, PR is equal to QL आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन में क्या था, सी गिवन रिमाइंड करो अपने आप को, गिवन में क्या था, गिवन में ये था कि PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC विच इज इक्वल टू PM अपॉन AD, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं ये जो भी है हमारे पास। सी AC की जगह आप BE लिख दो, PR की जगह QL लिख दो, इससे क्या होगा, लेट्स सी। देयरफॉर PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR की जगह QL अपॉन AC की जगह BE इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM अपॉन 2 टाइम्स AD। ये हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान रखो थोड़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, सी वी ऑलरेडी हैव दीज 2 साइड्स इन प्रपोर्शन, तो मुझे सिर्फ ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल चाहिए फॉर PQR टू बी सिमिलर टू ABC। वो एंगल मुझे कहाँ से मिलेगा, इफ़ आई गेट दिस एंगल एंड दिस एंगल, करेक्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, आप देखो, PQ और AB, फिर QL लिया, QL कहाँ है, QL और BE, एंड देन PM टू ML टू PM टू AD। वो क्यों किया, बिकॉज आई एम प्रूविंग दिस 2 ट्राइंगल्स सिमिलर, ठीक है, बाय SSS। अब क्या मिल गया मुझे, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QL अपॉन BE इज इक्वल टू PM का डबल क्या होगा, PL होगा, और AD का डबल क्या होगा, AE होगा। तो ये जो 2 बड़े ट्राइंगल्स आए हैं वो सिमिलर प्रूव हो गए। वो अगर सिमिलर प्रूव हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल PQL इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABE। इससे मुझे क्या मिला, देयरफॉर एंगल QPL इज इक्वल टू एंगल BAE। अब यही चीज़ आप दूसरी साइड पे भी कर सकते हो। जो यहाँ पे आपने जो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव किया PQL को, तो आप सिमिलरली PRL और ACE को भी इक्वल सिमिलर प्रूव कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग QL अपॉन BE विद दीज 2 साइड्स, पैरेललोग्राम के ये दोनों साइड्स लेके, ठीक है। तो वो करके आपको दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा, एंगल RPL इज इक्वल टू एंगल CAE। सी हमने यहाँ पे क्या किया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट यूज़ किया, हमने ये दोनों साइड्स यूज़ किए, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये दोनों साइड्स भी यूज़ कर सकते हो, फिर PQ अपॉन AB को रिप्लेस कर सकते हो बाय दोज 2 साइड्स। यहाँ पे आपका PR और AC सेम रहेगा, और यहाँ पे आप 2AM 2AD करके यू विल प्रूव PRL सिमिलर टू ACE, ओके। उससे आपको एंगल RPL इज इक्वल टू एंगल CAE मिलेगा। अगर आई एम एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, व्हाट आई गेट, QPL प्लस RPL, what it gives me, QPR इज इक्वल टू एंगल BAC, करेक्ट। अब मेरे पास क्या बचा है, सी आई ऑलरेडी हैव कि PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC,
एंड आई हैव नाउ कि एंगल QPR is equal to angle BAC. So by SAS, therefore by SAS I have triangle PQR similar to triangle AB and ABC. Okay, that is your question number 14. आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो आप बार बार इस वीडियो को देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं फिर भी समझ में आता है तो सी दीज आर द नोट्स जिसमें काफ़ी अच्छे से पूरा सोल्यूशन दिया है. नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ उसको भी रेफ़र करो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, गो एंड डाउनलोड योर नोट्स. Question number 15 is exactly similar to example 7. It will be your DIY. You have to do it yourself. Example 7 को रेफ़र करना और 15th सॉल्व करना काफ़ी easy है, सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. और दूसरा question number 16, it is exactly same as क्वेश्चन 12 बट उसका रिवर्स है. तो एक बार अपने से ट्राई करना, नहीं होता है तो यू हैव द सॉल्यूशंस. ओके, ट्राई इट योर सेल्फ. नहीं समझ में, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में लिखो. आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड प्रिपेयर वीडियो ऑफ द डाउट्स प्रेजेंटेड इन द कमेंट सेक्शन. So yeah, that is all about your chapter number 6 triangles. In the next video we are starting with one of the easiest chapters of your mathematics curriculum, which is chapter 7 coordinate geometry. I know उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कुछ स्टूडेंट्स को, but if you regularly watch our videos you will be clear with your doubts. Okay, so stay tuned for the next chapter. Thank you so much.